ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਬੇਵਫਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੀ ਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆ ਸੋਨਮ ਉਹ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਕੜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦੌਰ ਆ, ਉਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 10-11 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। साहिल यादव। साहिल जी, आप ढाबे का क्या नाम है? मेरे ढाबे का नाम काशी ढाबा है। जी, हाँ आप ओनर हो? जी जी। साहिल जी, कैसे क्या वो जो सोनम लड़की थी तो कैसे यहाँ पे आई? क्या पूरी कहानी क्या है, मतलब कैसे? रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम हाँ वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था? सोनम जी नहीं, वो अकेली थी। अकेली थी। तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से, कुछ सुने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया, मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज के लिए? पूछताछ? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई, फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको भी पता नहीं था कि वो? हाँ, अब रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। यूपी ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। अरे ये सब और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया तक लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही है सिलून पुलिस, तो ये गलत लगा रही है, इसका नहीं हो सकता। इसका कुछ नहीं, कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी ये थी तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाओ। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूं मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच हुई तो वो सब उसको सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा, पुलिस का कहना है? कौन से पुलिस का कहना, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कहती हूँ कि आप मेरे घर में घुस आए तो चोरी करने आए थे, तो मैं कहती हूँ तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मांग लोगे क्या? ये हाँ तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज, अरे रीति रिवाज से करवाई? हेलो हाँ जांच करवाओ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। सचिन भैया जिस तरीके से आज घटनाक्रम पूरा हुआ है क्या कहना चाहते हैं? सर मैं अभी तो कहना कोई भी चाहता नहीं हूँ कि हम तो एक बेटी और बहू बना के लाए थे। अभी जो बातें चल रही है, जो जानकारी आई है, वो यदि सरकार जिसमें वहाँ के DGP साहब हैं मेघालय के, CM साहब ने जो पोस्ट करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा पोस्ट कि क्या बात है क्या बात नहीं। लेकिन जब तक सोनम के मुझसे कबूल नहीं आएगा जब तक हम यकीन नहीं कर सकते कि हुआ क्या था। और जो भी जानकारी है वो तो पुलिस पूरी निकाली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पेचीदा केस हो गया ये कि किसने क्या करा है। तो मैं अभी इसमें बहू की बुराई भी कर सकता नहीं हूँ कि हम उसको बहन बहू बना के लाए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में एक बहू है कि हम तीनों पे साथ में रहते हैं, तो मैं बुराई तो नहीं कर सकता। लेकिन जो भी जानकारी चाहता हूँ कि इसमें CBI की मांग चाहिए मेरे को, कि अब इसमें CBI चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी डिटेल। और जैसे जहाँ तक ख्याल है कि जो कुछ सुनने में बात है कि कोई राज कुशवा है, कोई किसी का नाम आएगा, ये हमें तो पता नहीं क्या, लेकिन आप लोगों को मालूम पड़ा है, आप लोगों को मालूम पड़ा है मीडिया से कि किसी का नाम आएगा। अब कौन है, कहाँ रहता था, क्या है, किसने करवाया है, तो अभी तो मैं कोई बोल सकता नहीं। सोनम रघुवंशी की जानकारी कैसे? रात को 1:30 से 2 के बीच में भाई का फ़ोन आया था, गोविंद बहन का फ़ोन आया था गोविंद के पास कि बिट्टू बोल रही हूँ। कौन बिट्टू? बोला सोनम बोल रही हूँ। तो उन्होंने कौन सोनम? बोले भैया मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके गोविंद ने कंफर्म करा। फिर 2 बजे उन्होंने गोविंद ने वहाँ UP पुलिस को फ़ोन लगाया कि मेरी बहन वहाँ पे गई, आप उसको वहाँ से लीजिए और मैं निकाल रहा हूँ। ऐसा हुआ। तो क्या लगता है सोनम रघुवंशी ने? सब अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपने पास कंफर्म नहीं, ये तो सब पुलिस ही बताएगी। ये बताइए कि आज सुबह से सोनम के घर वालों से बात नहीं है? नहीं, बात ही नहीं पाई सर। उनने भी फ़ोन नहीं लगाया? बात टाइम मिल वहाँ मीडिया आई है, यहाँ मीडिया आई है, तो फ़ोन तो हो ही नहीं पा रहा है। सोनम रघुवंशी के भाई से किसी प्रकार की कुछ चर्चा? नहीं, वो विपिन की हुई थी, मेरी कुछ नहीं हुई है। बाकी मैं तो मेघालय पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने 17 दिन के अंदर खोजबीन करके उनको निकाला है। ये गाजीपुर कैसे पहुंची? मतलब आप सर ये पहला होता सवाल तो ये होता है कि 17 दिन बाद पहुंची है, 17 दिन से क्या खाया, कैसे रही है और कैसे पहुंची है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो हम बता सकते नहीं भी। ये सोनम जी सब जानकर सोनम बता पाएगी। आप अभी भी बोल रहे हैं कि वो हमारी बहू है? सर हम तो बहू बना के लाए थे, बेटी बना के लाए थे, तो हम तो कभी उसके बारे में गलत सोचेंगे नहीं। अब बाकी सर क्या है क्या नहीं वो तो सोनम बताएगी। जैसे शादी के पहले सोनम से आपकी बात हुई होगी या नहीं सर, मैं बड़ा भाई हूँ। शादी के बाद घर पे रही, क्या व्यवहार रहा है? नहीं, बातचीत में तो हो ही नहीं पाई। तो मैं बड़ा हूँ, जेठ हूँ, मेरे तो 2 बहू गई, तो मेरी इतनी बातचीत नहीं पाती गई। और इतना करें बातचीत मम्मी की होती है। अगर सोनम रघुवंशी का हाथ इस हत्या में रहता है तो क्या मांग करेंगे? नहीं सर, ये अब मांग तो जब भी करूँगा कि इसमें हाथ रहता है तो कुछ कड़ी से कड़ी मांग करूँगा। आपका पूरा नाम? सचिन रघुवंशी। नहीं ये नहीं पता, वो तो उनको पता है, ये तो गोविंद भैया बता पाएंगे कि राज कुशवा कौन है। ਤੇ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੋਨਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ
क्योंकि सोनम बेवफा है। इस तरीके का ਜਿਹੜਾ ਉਹ सोशल मीडिया ਤੇ काफ़ी ट्रेंड भी कर ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਤੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨਮ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਵਾਨ ਝਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸੋਨਮ ਦੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਸੋਨਮ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।